अस्सलाम स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ एक आईकैप का पास पेपर डिस्कस करूंगा। और ये पास पेपर जो है आप लोगों का ऑटम 2020 का क्वेश्चन नंबर 4 है, डिसीजन मेकिंग का। सवाल को पढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं और सॉल्व करते हैं। सवाल कहता है, सयाब लिमिटेड एसएल इज इन्वॉल्व्ड इन मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्टिंग ऑफ प्रोडक्ट्स बीए, सीए एंड डीए। Keeping in view the continuous operating losses in product BA, the management is considering to discontinue the production of BA. Summarized operating results of BA for the year 2019 are as follows. यूनिट सोल्ड 2018 में जो यूनिट्स बिके थे और 2019 में जो यूनिट्स बिके। सेल्स रेवेन्यू, रॉ मटेरियल कंजम्पशन, लेबर, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स में डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, एलोकेटेड कॉस्ट, सेलिंग एक्सपेंसेस 2018 और 2019 दोनों सालों के, और ऑपरेटिंग लॉस। ये कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है। आप सवाल पढ़िएगा अच्छे से। जब हम आंसर पर जाएं उससे पहले आप वीडियो पॉज कर अच्छे से सवाल को ज़रूर रीड कीजिएगा। Chief Financial Officer CFO is of the opinion that discontinuance of BA will save all manufacturing and selling expenses except allocated fixed manufacturing overheads. It is estimated that total allocated fixed manufacturing overheads will be reduced by 10%. CFO ये कहता है कि अगर हम BA बंद कर देंगे तो हमारे सारे के सारे मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग के खर्चे बच जाएंगे, सिवाय जो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स एलोकेट किए हैं। और एक अंदाजे के मुताबिक एलोकेटेड फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स 10% से कम हो जाएंगे। In a recent management meeting, SL sales director does not agree with the suggestion to discontinue this product. सेल्स डायरेक्टर बोलता है नहीं, हमें इस प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू नहीं करना चाहिए। She is of the view that BA is in high demand in the local market and the management should consider to launch this product in the local market through an online marketplace, जमाल एक्सप्रेस। तो उसका ये कहना है कि हमें ये प्रोडक्ट ऑनलाइन बेचना चाहिए और ऑनलाइन हमें एक मार्केट प्लेस के थ्रू बेचें जिसका नाम जमाल एक्सप्रेस है। She argues that this will not only minimize the selling expenses but also allow SL to reach maximum customers. और इसका ये कहना है कि इसकी वजह से जो हमारे कस्टमर्स हैं वो इंक्रीज़ होंगे और सेलिंग एक्सपेंसेस जो हैं वो बच जाएंगे। Following information having available in respect of launching an online store of BA at JE. अब कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है तो मैं ज़रा इसको थोड़ा सा मैक्सिमाइज़ कर लूँ ताकि आप लोगों को क्लियर नज़र आए। ठीक है, अब काफ़ी बेहतर होगा। सही है, अच्छा जी। तो कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है। एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ BA इज़ 172,000 यूनिट्स। ठीक है, अच्छा एक मिनट दीजिएगा मुझे ज़रा, मैं हाँ जी। Existing production capacity of BA is 172,000 units. Existing demand of BA in the online market is sufficient to boost the sales by 10% from the previous year. However, for achieving this target level of sales, a digital marketing service provider will be hired at an annual cost of 800,000 rupees. BA will be sold at rupees 180 per unit. SL will have to pay an annual subscription fee of 110,000 to JE to operate as a seller. In addition, JE will charge 2% sales commission. JE also provides an additional facility of handling delivery and sales return to its clients. This service can be availed by paying either an annual lump sum fee of rupees 1.5 million or an additional commission of 5% of the selling price. If this service is availed, entire fixed selling expenses will be saved. Fixed and variable selling expenses pertaining to BA will be reduced by 10% and 80% respectively. Additional support staff will be hired at a cost of rupees 200,000 per month. This additional hiring cost can be reduced to 80% if existing staff is given additional responsibility
with overtime payment which would increase variable selling expenses by 10%. Required, evaluate the suggestions of CFO and sales director and recommend the best course of action to the management. हमें ऊपर वाला पूरा सिनेरियो एवेल्युएट करना और हमें बताना है कि क्या हम ऑनलाइन स्टोर पर जाएं या क्या हम जो हमारा प्रोडक्ट BA है उस BA प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू कर दें। तो ये एक डिसीजन मेकिंग का सवाल है और डिसीजन मेकिंग के सवाल में हम कोई प्रोडक्ट जो है वो उस वक्त डिसकंटिन्यू करते हैं जब उससे आने वाले रेलेवेंट रेवेन्यूज़ उसकी रेलेवेंट कॉस्ट से कम हो। तो हम एक काम करते हैं ना, हम ये देखते हैं कि भाई BA जो है ना उसकी जो रेलेवेंट कॉस्ट क्या है और रेलेवेंट रेवेन्यूज़ कितने हैं, और अगर हम इसको बंद करते हैं तो हमें क्या नुकसान या फ़ायदा होगा। हम पहले ये एवेल्युएट करते हैं कि क्या हमें BA को डिसकंटिन्यू करते हैं तो हमें कितना फ़ायदा या नुकसान होता है। देखिए, अगर हम BA की बात करते हैं और लेट से हम BA की एक एक वैल्यू, एक एक सेल्स रेवेन्यू हो गया, वेरिएबल कॉस्ट हो गई, ये सारी चीज़ें देखते हैं और अगर ये देखें कि क्या हमें इसको डिसकंटिन्यू करना चाहिए या नहीं, तो बड़ी एक सिंपल सी वर्किंग होगी और वो वर्किंग कुछ इस तरह से होगी कि अगर तो हम क्या कहते हैं BA को डिसकंटिन्यू करते हैं तो हमें क्या नहीं मिलेगा। हमें BA से मिलने वाली जो कंट्रीब्यूशन है ना वो नहीं मिलेगी। ठीक है, BA से मिलने वाली जो कंट्रीब्यूशन है वो हमें ज़ाहिर है कि हासिल नहीं होगी। अच्छा, कंट्रीब्यूशन हासिल नहीं होगी, ये हमारा एक नुकसान है। अब कितनी कंट्रीब्यूशन हासिल नहीं होगी, ज़रा इसकी एक वर्किंग करते हैं। ठीक है ना, कंट्रीब्यूशन फॉर गॉन, यानी कि अगर मैंने BA को डिसकंटिन्यू किया तो कितनी कंट्रीब्यूशन फॉरगो हो जाएगी, चली जाएगी। सबसे पहले मैं लिखता हूँ सेलिंग प्राइस। एक यूनिट की सेलिंग प्राइस कितनी है, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना हुआ है उसमें 30 मिलियन का सेल्स रेवेन्यू है 150,000 यूनिट्स का। तो इसका मतलब एक यूनिट की सेलिंग प्राइस 200 है। फिर इसमें से हम वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं। ठीक है ना, वेरिएबल कॉस्ट जो है वो कौन कौन सी है सर? देखिए, मटेरियल की कॉस्ट वेरिएबल होती है, लेबर की कॉस्ट वेरिएबल होती है और वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स जैसे कि मेंशन्ड है, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स जैसे कि मेंशन्ड है, ये कुछ वेरिएबल कॉस्ट है। सबसे पहले हम मटेरियल की कॉस्ट की बात करते हैं। मटेरियल की जो कॉस्ट है वो 12 मिलियन दी हुई है सवाल में और ये दी हुई है फॉर 150,000 यूनिट्स। तो एक यूनिट की 80 हो गई। ठीक है, इसी तरह से लेबर की जो कॉस्ट है वो 6 मिलियन दी हुई है और ये 6 मिलियन की कॉस्ट दी हुई है अगेन 150,000 यूनिट्स की, तो एक यूनिट की 40 हो गई। इसी तरह से वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स के जो खर्चे हैं वो खर्चे 3 मिलियन दिए हुए हैं 150,000 यूनिट्स के, तो एक यूनिट के 20 हो गए। और कोई वेरिएबल कॉस्ट नज़र आती है आपको? देख लेते हैं। देखिए, सेलिंग एक्सपेंसेस जो है ना 2000 और 18 के साल के टोटल 805000 दिए हुए हैं और यूनिट से 156250, जबकि सेलिंग एक्सपेंसेस 2000 और 19 के 7.8 मिलियन दिए हुए हैं और जो यूनिट्स है वो दिए हुए हैं 150,000। और नीचे इस बात का जिक्र भी था पॉइंट नंबर 6 में, फिक्स्ड एंड वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस। तो इसका मतलब कुछ वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस भी लाजमी तौर पर हैं। अब यहाँ पर करना ये है कि हमें हाइलो मेथड लगाना है। हाइलो मेथड आप लोग बेसिक लेक्चर्स में सीख चुके हो। हाइलो मेथड में हम क्या करते हैं, चेंज इन कॉस्ट। चेंज इन कॉस्ट का मतलब 8050,000 माइनस 7800,000 चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट्स। चेंज इन यूनिट्स यानी कि 156,250 माइनस 150,250
000। इससे हमारे पास जो वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट आ रही है वो 40 रुपये आ रही है। तो वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस आ रहे हैं 40 के। तो ये सारी चीज़ें अगर मैं हटा दूं, अगर मैं ये सारी चीज़ें नेट ऑफ कर दूं, तो इसका मतलब ये हो गया कि मेरे पास 20 रुपये की कंट्रीब्यूशन आ रही है पर यूनिट। ठीक है, ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट की वैल्यू आ गई है। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मेरी जो है वो सेलिंग प्राइस में से सारी वेरिएबल कॉस्ट माइनस करी तो आ गई। और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का मतलब ये है कि अगर एक यूनिट मैं BA का बेचता हूँ तो मुझे 20 रुपये की कंट्रीब्यूशन मिलती है। अगर मैं टोटल कंट्रीब्यूशन लिख दूँ, टोटल कंट्रीब्यूशन, तो भाई मैं 20 रुपये की कंट्रीब्यूशन एक यूनिट से कमाता हूँ और मैंने इस 2019 के साल में 150,000 यूनिट्स बेचे थे। तो ये मुझे टोटल कंट्रीब्यूशन मिल गई कि BA जो है ना, BA के 150,000 यूनिट्स जो हैं, BA के 150,000 यूनिट्स जो हैं वो मैं अगर बेचता हूँ तो उसको बेचने से मुझे 103 मिलियन की कंट्रीब्यूशन आती है। 150,000 यूनिट्स की 20 रुपये के हिसाब से 3 मिलियन। तो जब मैं BA को डिसकंटिन्यू करूँगा तो मुझे ये कंट्रीब्यूशन नहीं मिलेगी। नहीं मिलेंगी। ये एक चीज़ हो गई। दूसरा, कुछ कॉस्ट सेविंग्स होंगी, ड्यू टू डिसकंटिन्यूएशन, यानी कि कुछ ऐसे खर्चे होंगे। एक तो देखो कंट्रीब्यूशन फॉरगॉन है, भाई ये तुम नहीं कमा सकोगे, और कुछ कॉस्ट सेविंग्स हैं ड्यू टू डिसकंटिन्यूएशन, यानी कि डिसकंटिन्यू करने की वजह से कुछ ऐसी कॉस्ट की सेविंग्स होंगी जो अराइज होंगी। वो क्या होंगी? सबसे पहले फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स में डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट दी हुई है 2.8 मिलियन की। ये जो 2.8 मिलियन का अमाउंट है, ये 2.8 मिलियन का अमाउंट जो है ये एक डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट है मैन्युफैक्चरिंग की, फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स जो कि डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट का मतलब ये होता है कि अगर ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट मैं बनाऊंगा तो ये फिक्स कॉस्ट अकर होगी, और ये प्रोडक्ट नहीं बनाऊंगा तो ये फिक्स कॉस्ट अकर नहीं होगी। तो अगर मैं ये प्रोडक्ट नहीं बनाऊंगा तो ये 2.8 मिलियन का मुझे खर्चा भी नहीं करना पड़ेगा। अगली जो हमारी कॉस्ट है उसके बारे में ये वाला सेंटेंस पढ़ते हैं। इधर लिखा हुआ है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर CFO इज ऑफ द व्यू that discontinuance of BA will save all manufacturing and selling expenses except allocated fixed manufacturing overheads. It is estimated that total allocated fixed manufacturing overheads will be reduced by 10%. CFO का ये कहना है कि अगर आपने प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू किया तो सारी मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग की फिक्स कॉस्ट जो है वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, सब बच जाएगी, और जो एलोकेटेड फिक्स कॉस्ट है वो 10% से कम हो जाएगी। तो हम ये देखते हैं कि भाई रिडक्शन इन एलोकेटेड फिक्स्ड कॉस्ट, ये भी एक बेनिफिट है ना। देखो अभी आपकी जो एलोकेटेड फिक्स कॉस्ट है वो कितनी है टोटल, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एलोकेटेड 30% और टोटल 750,000, यानी कि एक टोटल कॉस्ट थी, उस टोटल कॉस्ट का 30% जो है वो मैंने BA पे एलोकेट किया था, और वो 30% 7.5 लाख बन रहा था। तो टोटल कितना होगा? 750,000 डिवाइडेड बाई 30 मल्टीप्लाइड बाई 100। देखो 2.5 मिलियन का टोटल खर्चा था, 2.5 मिलियन का टोटल खर्चा था, और इस 2.5 मिलियन के टोटल खर्चे में से 30% खर्चा जो है वो BA में शामिल हो रहा था। सवाल ये कहता है कि जब आप BA को डिसकंटिन्यू करोगे तो ये जो टोटल खर्चा है ना ये 10% से कम हो जाएगा, यानी कि 90% रह जाएगा। तो देखो BA को डिसकंटिन्यू करने का एक और फ़ायदा भी है कि मेरे जो फिक्स खर्चे हैं ना वो 2.5 लाख से कम हो जाएंगे। मेरे जो फिक्स खर्चे हैं वो 2.5 लाख से कम हो जाएंगे। मैं वापस से रिपीट करता हूँ, 7.5 लाख रुपए जो है वो टोटल एलोकेटेड कॉस्ट का 30% है, यानी कि टोटल बनता है 2.5 मिलियन।
सवाल ये कहता है कि जब आप बी ए डिसकंटिन्यू करोगे तो ये भी 10% से कम हो जाएगा, 10% से कम हो जाएगा तो कितना रह जाएगा, 90%। तो इसका मतलब मैं बी ए डिसकंटिन्यू करूँगा तो मेरे जो फिक्स कॉस्ट वाले खर्चे हैं वो भी 2.5 लाख से क्या हो रहे हैं, वो भी 2.5 लाख से कम हो रहे हैं। तो रिडक्शन इन एलोकेटेड फिक्स कॉस्ट जो है, रिडक्शन इन एलोकेटेड फिक्स कॉस्ट जो है वो 2.5 लाख है। 2.5 लाख से मेरी जो फिक्स कॉस्ट जो एलोकेटेड है वो कम हो रही है। अच्छा, फिर फिक्स्ड सेलिंग एक्सपेंस की बात करते हैं। फिक्स्ड सेलिंग एक्सपेंस की बात करते हैं। जब हम फिक्स सेलिंग एक्सपेंस की बात करेंगे तो फिक्स सेलिंग एक्सपेंस जो है इसमें आपने अभी वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंस पर यूनिट हाइलो मेथड लगाकर निकाला, चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट्स। इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल मैं इसलिए नहीं शेयर कर रहा क्योंकि ये हम पहले कर चुके हैं। हम इसी के ज़रिए फिक्स सेलिंग कॉस्ट भी निकाल सकते हैं। मिसाल के तौर पर 7,800,000, ये 7.8 मिलियन जो इस साल के सेलिंग के खर्चे हैं, इसमें से 40 मल्टीप्लाइड बाई 150,000, 40 मल्टीप्लाइड बाई 150,000, ये जो वेरिएबल हिस्सा है ये हम अलग कर देते हैं। 7.8 मिलियन जो है ना, इसमें से हम माइनस कर देते हैं 40 इंटू 150,000। 7.8 मिलियन जो है इसमें से हम माइनस कर देते हैं 40 इंटू 150,000। 40 इंटू 150,000 जो है वो वेरिएबल हिस्सा है जो कि 7.8 मिलियन में शामिल है। एक यूनिट की वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट जो है वो 40 है और 150,000 टोटल यूनिट्स है। तो हम 7.8 मिलियन में से 40 इंटू 150,000 निकाल देते हैं तो हमारे पास जो है वो 1.8 मिलियन फिक्स सेलिंग एक्सपेंस बच जाता है। हम यहाँ पर ये फिक्स सेलिंग एक्सपेंस लिख देते हैं। ये भी हमारा इनकम नहीं होगा अगर हम प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू करेंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब मैं प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू करूँगा, अगर मैं प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू करता हूँ तो मेरे खर्चे 4.85 मिलियन से कम हो जाएंगे और मेरी जो इनकम है वो 3 मिलियन से कम हो जाएगी। तो इसका मतलब मुझे तो नेट बेनिफिट है ना, नेट बेनिफिट इसलिए मेरे खर्चे 4.85 मिलियन से कम होंगे और मेरी कंट्रीब्यूशन 3 मिलियन से कम होगी। तो मुझे नेट बेनिफिट जो है वो 1.85 मिलियन का मिलेगा। मुझे जो नेट बेनिफिट है वो 1.85 मिलियन का मिलेगा अगर मैं प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू करता हूँ। तो देखो, अगर हम प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू करते हैं तो ये सारे हिसाब किताब या ये सारी वर्किंग्स बनती है और हमारा नेट बेनिफिट 1.85 मिलियन है। इस हिसाब से तो हमें प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि जो हमारे ख़र्चे हैं वो 4.85 मिलियन से कम होंगे, हमारे जो इनकम्स हैं या जो हमें कंट्रीब्यूशन मिल रही है वो 3 मिलियन से कम होगी। लिहाजा 1.85 मिलियन का फ़ायदा है क्योंकि मेरे ख़र्चे जो हैं वो 1.85 मिलियन ज़्यादा हैं और इनकम जो है वो 3 मिलियन है। तो अगर डिसकंटिन्यू करूँगा तो ख़र्चे जो है वो 4.85 मिलियन से कम होंगे और इनकम जो है वो 3 मिलियन से कम होगी। तो नेट तो मुझे मेरे हाथ पे 1.85 मिलियन बच जाएगा। ठीक है, ये एक चीज़ हो गई। अगली बात करते हैं। अगली बात ये थी कि सेल्स डायरेक्टर ने ये कहा कि आप डिसकंटिन्यू नहीं करो बल्कि आप ऑनलाइन पर चले जाओ। अच्छा, अगर हम ऑनलाइन पर जाते हैं तो उसकी अब हमें वर्किंग करनी होगी कि ऑनलाइन पर जाएंगे तो क्या होगा और ऑनलाइन पर जाकर हमें कितना फ़ायदा या कितना नुकसान होगा। तो हम 3 कॉलम्स बना लेते हैं। एक तो एग्जिस्टिंग जो अभी हो रहा है, एक ऑनलाइन जाने पर क्या होगा और एक इन दोनों का जो डिफरेंशियल है, इंक्रीमेंटल है या चेंज है आप कह लो, चलो आसान लफ्ज़ों में, वो क्या है। सबसे पहले सेल्स की बात करते हैं। ठीक है, देखिए करंट आपकी जो सेल है ना वो 30 मिलियन है। ठीक है, अच्छा जी, अब हम ज़रा देखते हैं कि भाई ऑनलाइन पर जाने से क्या होगा। यहाँ पर ये सारी डिटेल्स ऑनलाइन की दी हुई हैं, सही है। ये सारी डिटेल्स आपको जो दी हुई हैं ये आपको ऑनलाइन जाने की डिटेल्स दी हुई हैं कि अगर मैं ऑनलाइन गया तो ऑनलाइन जाने से क्या फ़ायदा क्या नुकसान वगैरह होगा। एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ BA इज़ 172,000 यूनिट्स। Existing demand of BA in the online market is sufficient to boost sales by 10% from the previous year। इसका मतलब सेल्स जो है वो 10% से बढ़ जाएगी।
However, for achieving this target level of sales, a digital marketing service provider will be hired at an annual cost of 800,000. BA will be sold at rupees 180 per unit. BA जो है उसका एक यूनिट 180 पे बिकेगा. अच्छा देखो, करेंटली कंपनी 1.5 लाख यूनिट्स बेच रही है. करेंटली कंपनी 1.5 लाख यूनिट्स बेच रही है. सवाल ये कहता है कि जब आप ऑनलाइन पर जाओगे तो आपके जो यूनिट सोल्ड है ना वो 10% से इंक्रीज़ हो जाएंगे. तो 150,000 को हम ज़रा मल्टीप्लाई करते हैं 1.1 से, तो इसका मतलब 165,000 यूनिट जो है वो बिक पाएंगे. पॉइंट नंबर 1 में जो लिखा हुआ है ना, एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ BA इज़ 172,000 यूनिट्स, हम इस लिमिट के अंदर हैं. यानी कि अगर 1,65,000 यूनिट्स बनाकर बेचने हैं और आपके प्लांट में 172,000 यूनिट्स बन सकते हैं तो कोई मसले की बात नहीं है. मसला तब होता जब आपके पास 10% इंक्रीज़ कर आंसर 172,000 से ज़्यादा आ रहा होता. अगर आपका आंसर 172,000 से भी ज़्यादा आता तो आप 172,000 पर रुक जाते, उससे आगे नहीं बढ़ सकते थे. तो बात यह है कि 165,000 यूनिट्स आप बेच सकते हो ऑनलाइन में. एक यूनिट आपका जो है ना वो 180 में बिकेगा. तो 165,000 यूनिट्स जो 180 के हिसाब से बिकेंगे, क्योंकि आप 200 का नहीं अब 180 का एक यूनिट बेचोगे, तो आपका ऑनलाइन में जाकर जो सेल्स रेवेन्यू है ना वो जो अभी 30 मिलियन है वो 29.7 मिलियन पर चला जाएगा. इसका तो मतलब ये हो गया कि ऑनलाइन पे जाने की वजह से मेरा एक नुकसान है कि मेरा सेल्स रेवेन्यू 3 लाख रुपए कम हो जाएगा. ऑनलाइन पे जाने की वजह से मेरा जो सेल्स रेवेन्यू है वो 3 लाख रुपए कम हो जाएगा. बहरहाल इसके कुछ फ़ायदे भी होंगे. तो ये एक नुकसान है कि ऑनलाइन पे जाने की वजह से मेरा सेल्स रेवेन्यू 3 लाख रुपए से कम हो रहा है. 165,000 यूनिट्स बिक रहे हैं 180 रुपये के हिसाब से. आगे देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है. अच्छा, ये जो डिजिटल मार्केटिंग सर्विस प्रोवाइडर की कॉस्ट है वो एनुअल 8 लाख रुपए है. ये एक फ़िक्स कॉस्ट है, ये हम बिल्कुल कंसिडर करेंगे, लेकिन हम अपने फ़िक्स कॉस्ट के एरिया में करेंगे. अभी मैं अपनी सेल्स रेवेन्यू और वेरिएबल कॉस्ट को फोकस कर रहा हूँ. फिर बोलता है पॉइंट नंबर 4 में SL वुड हैव टू पे एन एनुअल सब्सक्रिप्शन फ़ी ऑफ 1,10,000 टू JE. ये भी एक फ़िक्स कॉस्ट है टू ऑपरेट एज अ सेलर. इन एडिशन JE वुड चार्ज 2% सेल्स कमीशन. अब इसको 2% का कमीशन भी देना, तो जी सेल्स कमीशन जो है वो अगर मैं ऑनलाइन बेचूंगा तो सेल्स की वैल्यू का 2% है, यानी कि 594,000 बनता है. ये हमें पे करना होगा, अदरवाइज़ पे नहीं करना. लेकिन अगर आप ऑनलाइन पर जाते हो तो आपको 594,000 का सेल्स कमीशन भी पे करना पड़ेगा. ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ऑनलाइन पर जाने की वजह से आपका एक और ख़र्चा है 594,000 का, जो कि पहले एग्जिस्ट नहीं करता था. तो इसका मतलब ऑनलाइन पे जाने की वजह से टोटल 894,000 का अभी तक नुकसान नज़र आ रहा है. आगे चलना. अगली क्लॉज में बोलता है JE ऑल्सो प्रोवाइड्स एन एडिशनल फैसिलिटी ऑफ हैंडलिंग डिलीवरी एंड सेल्स रिटर्न टू इट्स क्लाइंट्स. दिस सर्विस कैन बी अवेल्ड बाई पेइंग ईदर एन एनुअल लम्प सम ऑफ 1.5 मिलियन और एन एडिशनल कमीशन ऑफ 5% ऑफ द सेलिंग प्राइस. इफ दिस सर्विस इज अवेल्ड, entire fixed selling expenses will be saved. अब ज़रा गौर से सुनना. JE बोलता है कि आप मुझे पूरे साल का 1.5 मिलियन दे दो, या आप अपने सेलिंग प्राइस का 5% मुझे एक्स्ट्रा दे दो. 2% तो दे ही रहे हो, एक्स्ट्रा दे दो तो मैं आपकी डिलीवरी भी कर लूँगा, आपका सेल्स रिटर्न जो माल वापस आएगा उसको भी मैनेज कर लूँगा, यानी कि आपके सारे के सारे काम मैं खुद ही कर लूँगा. इफ़ दिस सर्विस इज़ अवेल्ड, अगर इस सर्विस को अवेल किया गया, इंटायर फिक्स्ड सेलिंग एक्सपेंसेस विल बी सेव्ड. अगर इस सर्विस को अवेल किया गया तो मेरे जितने भी सेलिंग एक्सपेंसेस हैं वो ज़ीरो हो जाएंगे, वो सारे सेव हो जाएंगे. सेलिंग एक्सपेंसेस मुझे फ़िक्स वाले करने ही नहीं होंगे. अच्छा, पॉइंट 6 अगर देखते हो तो बोलता है फिक्स एंड वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस पर्टेनिंग टू BA विल बी रिड्यूस बाय 10% एंड 80% रिस्पेक्टिवली. यानी कि फिक्स सेलिंग एक्सपेंसेस और वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस BA के जो हैं ऑनलाइन पे जाने की वजह से 10 और 80% से कम हो जाएंगे. पहले हम बात करते हैं फिक्स सेलिंग एक्सपेंस की. देखिए, फिक्स सेलिंग एक्सपेंस हमने हमारे कैलकुलेट किए 1.8 मिलियन, करेक्ट.
फिक्स सेलिंग एक्सपेंसेस हमने अपने हाइलो मेथड के ज़रिए 1.8 मिलियन के कैलकुलेट किए थे, जो कि पहले वाली वर्किंग में भी शामिल किए थे। अब देखें पॉइंट नंबर 5 और 6 को अगर हम कंबाइन पढ़ते हैं ना, तो हमारे पास 3 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 ये है कि जेई को हम 1.5 मिलियन दे दें और उसको बोलें कि भाई अब तुमने ही डिलीवरी भी देखनी है, तुमने ही सेल्स रिटर्न देखना है, सारा काम तुमने देखना है। ये एक काम हो सकता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो सकता है? ऑप्शन नंबर 2 ये हो सकता है कि मैं उसको फिक्स्ड 1.5 मिलियन नहीं दूं, बल्कि जो मेरा सेल्स रेवेन्यू है ना ऑनलाइन का 29.7 मिलियन, उसको मैं इसका 5% मजीद दे दूं, क्योंकि इसने बोला है ना कि या तो मुझे फिक्स जो है वो पूरे साल के 1.5 मिलियन दे देना, या तुम्हारा जो सेल्स रेवेन्यू है उसका तुम मुझे 5% दे देना। तो मैं क्या करूँगा, मैं तुम्हारा हैंडलिंग और डिलीवरी और सेल्स रिटर्न और ये सारे काम देख लूँगा, यानी कि मैं इसको 1485000 दे दूँ। अच्छा, एक और बात देखो, अभी जो डिलीवरी है और सेल्स रिटर्न का काम है और इस तरह का सारा काम है वो मैं खुद देख रहा हूँ, और उसके लिए मुझे जो है वो 1.8 मिलियन की फिक्स सेलिंग एक्सपेंसेस पे करनी होती हैं। सवाल ये भी कहता है कि जब तुम ऑनलाइन पर जाओगे तो ये 10% से कम होकर 0.9 रह जाएंगी, यानी कि तुम कह सकते हो कि यार नंबर 1 मैं जेई से काम करवा लूँ और उसको फिक्स्ड अमाउंट दे दूँ तो मेरा खर्चा 1.5 मिलियन होगा। नंबर 2 मैं जेई से काम करवाऊँ लेकिन उसको मैं वेरिएबल 5% दे दूँ तो मेरा यही काम 1.485 मिलियन में हो जाएगा। नंबर 3 मैं ये काम खुद करूँ, अगर मैं खुद करूँगा तो मुझे फिक्स सेलिंग एक्सपेंसेस इनकर करना पड़ेंगे 1.62 मिलियन के। करंट 1.8 मिलियन है, वो 10% से कम तो हो जाएंगे, लेकिन बचे हुए तो इनकर करने होंगे ना, अगर मैं ये काम खुद कर रहा हूँ। अब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे ये सोचना चाहिए कि यार खुद काम करते हैं तो 1.62 मिलियन का खर्चा है, जेई को एक जो है वो पूरे साल का अमाउंट फिक्स दे देते हैं 1.5 मिलियन का खर्चा है, लेकिन अगर हम जेई को एक वेरिएबल अमाउंट दे देते हैं तो 1.485 मिलियन का खर्चा है। लिहाजा मुझे ये करना चाहिए कि मुझे जेई को बोलना चाहिए कि तुम ये सारे काम संभालो और मैं तुम्हें एडिशनल कमीशन देता हूँ, और एडिशनल कमीशन मैंने आप लोगों को कैलकुलेट कर भी दिया, वो आपकी सेल्स रेवेन्यू का 5% है, ठीक है ना। तो ये वाली वैल्यू आ गई, सही हो गया। अच्छा, इसके बाद फिर हम आते हैं रॉ मटेरियल के खर्चे पर, लेबर के खर्चे पर, वेरिएबल ओवरहेड्स के खर्चे पर। तो रॉ मटेरियल का खर्चा जो है वो करेंटली अभी कितना है, अभी जो रॉ मटेरियल का खर्चा है ना वो 12 मिलियन है, ठीक है ना। अच्छा सर, अगर आप ऑनलाइन जाओगे तो क्या होगा? ऑनलाइन जाओगे तो 10% यूनिट ज़्यादा बिकेंगे, 1.5 लाख के बजाय 1,65,000 यूनिट्स बिकेंगे, तो ये खर्चा भी 10% ज़्यादा होगा, ठीक है। अच्छा, लेबर का करंट खर्चा कितना है? लेबर का करंट खर्चा 6 लाख रुपए, 6 मिलियन रुपए। अगर आप ऑनलाइन जाओगे तो क्या होगा, ये खर्चा आपका 10% से बढ़ जाएगा। उसके बाद वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स का जो खर्चा है वो 3 मिलियन है अभी। अगर आप ऑनलाइन पर जाओगे तो जाहिर है कि ये खर्चा भी आपका 10% से बढ़ जाएगा और 3.3 मिलियन हो जाएगा। अच्छा, वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंस, वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंस अभी कितने हैं? हमने ऊपर कैलकुलेट किए थे वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस, एक यूनिट के 40 आ रहे थे ना, एक यूनिट के 40 आ रहे थे, ठीक है ना। और 150,000 यूनिट्स के जो है वो 6 मिलियन आते हैं, ठीक है। वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस जो है वो 6 मिलियन आते हैं। अच्छा, लेकिन इस पर थोड़ी सी अब कुछ वर्किंग है, पहले यहाँ तक चीज़ें वाइंड अप करते हैं। देखिए, अगर मैं ऑनलाइन जाऊँगा तो ये भी एक मज़ीद एक्स्ट्रा ख़र्चा है। अगर मैं ऑनलाइन जाऊँगा तो रॉ मटेरियल का जो ख़र्चा है वो भी बढ़ेगा क्योंकि यूनिट्स भी बढ़े हैं। अगर मैं ऑनलाइन जाऊँगा तो लेबर का ख़र्चा भी बढ़ेगा। अगर मैं ऑनलाइन जाऊँगा तो वेरिएबल ओवरहेड्स का ख़र्चा भी जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा, ठीक है जनाब। यहाँ तक आई होप के बातें आप लोगों को समझ में आ रही हैं। अच्छा जी, फर्दर आगे बढ़ें।
चले जी फर्दर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मज़ीद अब हम क्या वर्किंग कर सकते हैं। अब हमारी बारी आती है वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस की। एग्जिस्टिंगली तो वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस 6 मिलियन रुपए के इनकर हो रहे हैं। अब हम जाते हैं वापस से अपनी वर्किंग्स पर। पॉइंट नंबर 6 कहता था फिक्स्ड एंड वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस पर्टेनिंग टू BA विल बी रिड्यूस्ड बाय 10% एंड 80% रिस्पेक्टिवली। यानी कि अभी आपके जो वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस 6 मिलियन है, ये 1.5 लाख यूनिट्स के हैं। अच्छा, एक यूनिट का भी निकाला हुआ है ना हमने 40, ये 80% से कम हो जाएगा तो 20% रह जाएगा। अगर कोई चीज़ 80% से कम होगी तो वो 80% से कम होकर सिर्फ और सिर्फ 20% रह जाएगी। और यूनिट्स 10% से इंक्रीज हुए हैं। ठीक है, एक मिनट, 40 एक यूनिट का है, मल्टीप्लाइड बाई 20%, एक यूनिट की वैल्यू आ गई। 20% क्यों लिया 40 का? 40 जो है वो वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस पर यूनिट है करंटली, वो 80% से कम होंगे तो 20% रह जाएंगे। और हमने कैलकुलेट किया था कि 1,65,000 यूनिट्स हम बेच रहे होंगे, तो 1,320,000। मैं यहाँ पर भी ये वर्किंग कर देता हूँ। देखिए आपकी जो वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस की वैल्यू आएगी वो कैसे आएगी। अब आप 1,65,000 यूनिट्स बेच रहे हो। अब आप 1,65,000 यूनिट्स बेच रहे हो। पहले एक यूनिट की वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस की वैल्यू 40 होती थी, अब वो 40 नहीं होगी, 80% से कम हो जाएगी तो 20% रह जाएगी। तो 40 का आप 20% ले लो और उसको 165,000 यानी कि नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई कर दो। अब यहाँ पर आपको बचत हो रही है। अगर आप ऑनलाइन जाओगे तो आपके वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस 1.32 मिलियन होंगे, अदरवाइज एग्जिस्टिंग वो 6 मिलियन थे, यानी कि 4.68 मिलियन की बचत हो रही होगी। ये एक बचत है आपकी, ठीक है ना। पहले आप 6 मिलियन रुपए वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस के पे कर रहे थे 40 रुपये फी यूनिट्स के हिसाब से 1.5 लाख यूनिट्स के। अब आप 40 इंटू 20%, 80% से कोई कॉस्ट कम हो जाएगी तो 20% रह जाएगी। 20% जो रह जाएगा उसको 165,000 से मल्टीप्लाई करो तो आपके खर्चे जो है वो 4.68 मिलियन से कम हो रहा। इसके बाद जनाब आगे बढ़ते हैं। एडिशनल सपोर्ट स्टाफ विल बी हायर्ड एट अ कॉस्ट ऑफ 200,000 पर मंथ। एक सपोर्ट स्टाफ भी चाहिए होगा जो 2 लाख रुपए फी महीना लेगा, तो 2 लाख रुपए एक महीने का, तो साल का कितना बना? 2.4 मिलियन। ठीक है, 2.4 मिलियन। दिस एडिशनल हायरिंग कॉस्ट कैन बी रिड्यूस टू 80%। इस हायरिंग कॉस्ट को आप 80% से कम कर सकते हो। इस हायरिंग कॉस्ट को आप 80% से कम कर सकते हो, यानी कि अगर ये 2.4 मिलियन है तो इसको आप 20% ले लो इसका, आप इसको 4,80,000 से कम कर सकते हो। ठीक है ना। दिस हायरिंग कॉस्ट कैन बी रिड्यूस टू 80%। अच्छा सॉरी, टू 80% है, यानी कि आप इसको 1,920,000 कर सकते हो। If existing staff is given additional responsibilities with overtime payment which would increase the variable selling expenses by 10%। यानी कि ये कोई सपोर्ट स्टाफ आप हायर कर रहे हो जो सेलिंग के लिए है, इनको आप दो चीज़ें ऑफ़र कर सकते हो। या तो आप इनको 2 लाख रुपए फी महीने और 12 महीने के 2.4 मिलियन दे दो, ये एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप इनको 1,920,000 दे दो, क्योंकि सवाल में लिखा हुआ है कि यह हायरिंग कॉस्ट 80% कम हो सकती है और 80% पर जा सकती है। लेकिन अगर आप ऐसा करोगे ना तो आपको इनको ओवर टाइम की पेमेंट करनी पड़ेगी, और वो ओवर टाइम की पेमेंट जो होगी ना वो आपके सेलिंग एक्सपेंसेस को 10% से बढ़ा देगी। तो सेलिंग एक्सपेंसेस अभी कितने हैं? 1,320,000। ये अगर 10% इजाफे बढ़ जाते हैं या 10% होते हैं तो ये 1,320,000 आता है। यानी कि मेरे पास एक तरह से दो ऑप्शंस में, या तो मैं 2.4 मिलियन पे कर दूं, या तो मैं क्या करूं 2,052,000 पे कर दूं, जिसमें से 1,920,000 फिक्स्ड हो और 10% वेरिएबल हो। तो ऑब्वियसली मुझे दूसरे वाले ऑप्शन पर जाना चाहिए, क्योंकि दूसरे वाले ऑप्शन में मेरी कॉस्ट जो है वो कम है ना। या तो मैं 2.4 मिलियन पे करूं, या तो 2.4 मिलियन का 80% पे करूं और 10% वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस में एक वेरिएबल पेमेंट ऐड कर दूं, तो ये खर्चा आता है। तो इन दोनों में से तो मेरे ख्याल में ये बेहतर है 2,052,000। तो इस हिसाब से हमारे पास एडिशनल वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंस जो है
वो इसका 10% यहाँ पे लगा दिया, और जब हम फिक्स कॉस्ट की वर्किंग करेंगे तो फिक्स कॉस्ट में 1920,000 को भी अकाउंट फॉर करेंगे। अच्छा, सारे पॉइंट्स पढ़ते पढ़ते मैंने सॉल्व कर लिया, लिहाजा अब सारी वेरिएबल कॉस्ट आ गई। तो हम अपनी कंट्रीब्यूशन पर आ सकते हैं। 3,30,69,000। चले जी। तो अब सर यहाँ तक की वर्किंग आपको क्या बता रही है बेटा? यहाँ तक की वर्किंग मुझे कंट्रीब्यूशन बता रही है, और कंट्रीब्यूशन मुझे ये सजेस्ट कर रही है, ये कंट्रीब्यूशन मुझे ये सजेस्ट कर रही है कि अगर मैं एग्जिस्टिंग कंट्रीब्यूशन देखूँ तो 3 मिलियन है, लेकिन अगर मैं ऑनलाइन पर चला जाता हूँ तो मेरी कंट्रीब्यूशन 3,06,9,000 हो जाएगी, यानी कि मेरी कंट्रीब्यूशन 69,000 से इंक्रीज हो जाएगी। अब हम फिक्स कॉस्ट पर आते हैं। फिक्स कॉस्ट में आपके पास डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कुछ कॉस्ट है, ठीक है ना। वो 2.8 मिलियन है मैन्युफैक्चरिंग की, 21280000, और ये 2.8 मिलियन ही रहेगी, यानी कि कोई इजाफा कोई कमी कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। 2.8 मिलियन जो है वो 2.8 मिलियन ही रहेगा, कोई कमी कोई इजाफा कुछ भी नहीं है, सही है ना। दोनों केसेस में सेम है। दूसरी चीज़ हमारी एलोकेटेड कॉस्ट है। एलोकेटेड कॉस्ट जो है वो कम तब होनी थी, एलोकेटेड कॉस्ट तो तब कम होनी थी, फिक्स कॉस्ट जो कि एलोकेटेड है, ये कम तब होनी थी जब आप प्रोडक्ट बंद करते, अदरवाइज तो ये 7.5 लाख रुपए ही है, 7.5 लाख रुपए ही है, ठीक है ना। और इन दोनों का डिफरेंस भी 0 आता है, ये एलोकेटेड कॉस्ट है। उसके बाद आपके पास जो फिक्स्ड सेलिंग कॉस्ट है, फिक्स्ड सेलिंग एक्सपेंस, अगर मैं ऑनलाइन स्टोर चला रहा हूँ तो वो 1.8 मिलियन है ना, और अगर सॉरी एग्जिस्टिंग में 1.8 मिलियन है, ऑनलाइन में कुछ भी नहीं है। ऑनलाइन में कुछ भी नहीं है, क्यों सर? क्योंकि देखो हमने यहाँ पर एक वर्किंग करी थी, यहाँ पर एक वर्किंग करी थी, और हमने इसमें से ये सोचा था कि हम जेई को ही बोल देंगे कि हमारी सेलिंग को मैनेज करे, डिलीवरी को, सेल्स रिटर्न को मैनेज करे, और उसके अगेंस्ट हम उसको 1485,000 दे रहे थे। तो मेरे अपने कोई भी फिक्स सेलिंग एक्सपेंसेस जो है ना वो नहीं है। ये तो तब होते जब मैं जेई की सर्विस नहीं लेता, लेकिन सवाल में क्लियरली लिखा हुआ है इफ़ दिस सर्विस इज़ अवेल्ड, यानी कि जेई की सर्विस लोगे, इंटायर फिक्स सेलिंग एक्सपेंसेस विल बी सेव, तो सारे फिक्स सेलिंग एक्सपेंसेस सेव हो जाएंगे। तो इसका मतलब फिक्स सेलिंग एक्सपेंसेस कोई भी नहीं होंगे, ठीक है ना। मैंने उसको यहाँ पर ये जो एडिशनल कमीशन दिया है, इसमें ये वही काम कर रहा है जो मैं फिक्स सेलिंग एक्सपेंसेस के ज़रिए किया करता था। अच्छा, फिर पॉइंट नंबर 2 पे लिखा हुआ था डिजिटल मार्केटिंग सर्विस लोगे, उसके लिए तुम 8 लाख रुपए पे करोगे, 8 लाख रुपए तुम्हारी फिक्स कॉस्ट है, तो वो 8 लाख रुपए मेंशन होगा यहाँ पर सेलिंग में, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा आपके पास पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 में लिखा हुआ था कि मुझे जेई को, जमाल एक्सप्रेसेस को ऑनलाइन जब चीज़ें बेचूंगा तो 1,10,000 रुपये का एनुअल सब्सक्रिप्शन भी पे करना है। एनुअल सब्सक्रिप्शन मेरी फिक्स कॉस्ट है 1,10,000 रुपये, ये मुझे ऑनलाइन के केस में पे करनी होगी। इसके बाद फिर हमने एक वर्किंग करी पॉइंट नंबर 7 की, एडिशनल सपोर्ट स्टाफ की 1,92,000 की एक फिक्स्ड अमाउंट की एडिशनल सपोर्ट स्टाफ, ये भी ऑनलाइन के ही वजह से इनकर होगा 1,92,000 का अमाउंट, तो ये भी हमने कंसिडर कर लिया। यानी कि अगर हम अपना प्रॉफिट या लॉस देखते हैं, प्रॉफिट या लॉस देखते हैं कि भाई फ़ायदा या नुकसान कितना होगा, तो करेंटली एग्जिस्टिंग ऑपरेशंस के हिसाब से तो 2,350,000 का नुकसान है। ये तो यहाँ पर भी आ रहा है, जो PNL बना हुआ है ना, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना हुआ है उसमें भी आ रहा है, बस उसमें कंट्रीब्यूशन वगैरह और फिक्स कॉस्ट है, वो कुछ कॉस्ट जो है वो सेलिंग की फॉर एग्जांपल ब्रेक नहीं हुई भी थी। अगर हम ऑनलाइन पर जाते हैं, अगर हम ऑनलाइन पर जाते हैं तो भी हमें नुकसान है, ठीक है। अगर हम ऑनलाइन पर जाते हैं ना तो भी हमें नुकसान है। और करेंटली 2.35 मिलियन का नुकसान है, अगर मैं ऑनलाइन पर जाऊंगा तो नुकसान 3.311 मिलियन का हो जाएगा, यानी कि नुकसान टोटल 961 मिलियन से इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। नुकसान 961
थाउजेंड से इंक्रीज हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास तीन बातें हैं ना। एक बात ये कि जैसे एग्जिस्टिंग चल रहा है वैसे चलने दो, एग्जिस्टिंग चल रहा है वैसे चलने दूंगा तो 2350,000 का नुकसान है। दूसरा ये है कि सेल्स डायरेक्टर की बात मानकर ऑनलाइन चला जाऊं तो 3.311 मिलियन का सालाना नुकसान है। और तीसरा ये है कि मैं डिसकंटिन्यू कर दूंगा तो मुझे 1850,000 का बेनिफिट है। देखिए तीन बातें, एग्जिस्टिंग, सेल्स डायरेक्टर की बात मानो, सीएफओ की बात मानो। अगर सेल्स डायरेक्टर की बात मानते हैं तो मेरा नुकसान जो है वो 3.311 मिलियन है। अगर मैं सेल्स डायरेक्टर की बात मानता हूँ, अगले साल मैं ऑनलाइन एग्जिस्टिंग बंद कर देता हूँ, ये तो हमारा तय है ना कि एग्जिस्टिंग हम बंद कर देंगे, ये तो लाल पट्टी मैंने कर दी, ये तो होगा ही नहीं। अगले साल दो काम हो सकते हैं, है ना। अगले साल या तो आप जो है वो चले जाओ सेल्स डायरेक्टर की बात मान लो। अगर आप सेल्स डायरेक्टर की बात मानते हो, तो आपके नुकसान 961,000 से इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है ना। अगर आप सीएफओ की बात मानते हो तो आपको नेट बेनिफिट होगा 1850,000 का एनुअली। इसका सवाल क्या था, इवेल्युएट द सजेशन ऑफ सीएफओ एंड सेल्स डायरेक्टर एंड रिकमेंड द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन फॉर मैनेजमेंट जो है वो उसका बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, मैनेजमेंट जो है वो क्या करे आखिर। तो अगर मैं सेलिंग का ऑप्शन और डिसकंटिन्यूएशन का ऑप्शन कंपेयर करता हूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि यार एग्जिस्टिंग से अगर मैं सेल्स डायरेक्टर या ऑनलाइन के ऑप्शन पर गया तो मेरे नुकसान जो है वो 961,000 से बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। जबकि अगर मैंने सीएफओ की बात मानी तो 1850,000 का बेनिफिट है। तो देयरफॉर मुझे क्या करना चाहिए, मुझे जो डिसकंटिन्यूएशन वाला ऑप्शन है उसको ऑप्ट करना चाहिए। आई होप कि ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है कि मुझे डिसकंटिन्यूएशन पर जाना चाहिए, क्योंकि डिसकंटिन्यू करने से मुझे एनुअल नेट बेनिफिट 1.85 मिलियन का हो रहा है। तो ये आप लोगों का एक पास पेपर का अच्छा सवाल था, डिसकंटिन्यूएशन ऑफ ऑपरेशंस का। इसको आप दोबारा से अच्छे से ज़रा सॉल्व करें, सुन कर समझ कर, और अपने रजिस्टर्स में नोट करें, और फिर कोई क्वेरी हो तो मुझसे पूछें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।